Hi everyone, welcome back to my channel Ayushi in Europe. I hope you guys had an amazing week. So guys, last week मैंने 2 videos upload की थी जिसमें I shared my job journey in Europe and how did I land my job in Germany. And उसके साथ साथ मैंने कुछ tips भी share की थी अगर आप जर्मनी में job ढूंढ रहे हो तो. And guys, उस वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारे लोगों ने reach out किया who wanted to understand how they can apply for job, and especially students, they wanted to understand how they can move there, उनकी university process, admission वगैरह वो सारी process के बारे में वो जानना चाहते थे. And इस पर I am going to make a video where I am going to cover in detail about students and everything. But एक चीज जो मैं बहुत ज़्यादा I feel that is very important and that I should cover is about finances. Because finances are important. It doesn't matter कि आप एक working professional की तरह आ रहे हो या एक student की तरह आ रहे हो. Financial planning is very important and it should be the first and the basic step before you plan to move. Before going into the detail of the video, I wanted to tell you guys that this video is going to be very informative for students or people who are trying to move to Germany. Please do not skip it and stay with me till the end. And also, अगर आप मेरे channel पर नए हो, so please do not forget to subscribe my channel. It gives me motivation to create more videos like this so that I can, help you guys. Okay, before talking about students, let me talk about working professionals first. So even for working professionals, first few months are expensive. क्योंकि ऐसा होता है ना कि भले आप जॉब लेकर आ गए हो, ऐसा तो नहीं होता कि आपने जैसे ही लैंड किया डे 1 से आप यूरोज में अर्न करो, आप स्पेंड करोगे नहीं. इनिशियल मंथ में आप अपनी सेविंग्स ही डिप कर रहे होते हो, चाहे वो फिर रेंट हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट हो, ग्रोसरीज हो, ट्रांसपोर्ट हो, सब में आपकी सेविंग्स ही जाती है फॉर इनिशियल फ्यू मंथ्स. नाउ इमेजिन अगर ये केस एक वर्किंग प्रोफेशनल का है तो स्टूडेंट्स के लिए कितना टफ होगा. स्टूडेंट्स के लिए भी सेम कॉस्ट ही आती है, बट उसके ऊपर से ट्यूशन फीस, यहाँ की हिडन कॉस्ट वही रेंट, डिपॉजिट, सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें भी आ जाती हैं. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स to do the proper financial planning before they plan to move to Germany or any other country. Yes, tuition fees is very low in Germany, but living here is not. And the biggest mistake that I see students making is like they decide their university and the country first instead of doing the proper financial planning. And guys, financial planning is the basic and the foundation step for the students before they plan to move. आपको कुछ भी और चीज प्लान करने से पहले कि क्या कोर्सेज हैं, क्या एडमिशन है, क्या क्राइटेरिया है, उससे पहले you should always figure out your finances. And I think these are the most important points which they should consider while financing or while figuring out or confirming their finances. First is their blocked account. Like they should be very much clear how they want to open their blocked account, where do they want to open their blocked account. Second is their currency conversion. What is the exact conversion rate and which channel they can get the most benefit. And the third important point is the loan. सी गाइस, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास बहुत सारी सेविंग्स हो या दे हैव टन लोड्स ऑफ मनी टू फुलफिल देयर ड्रीम टू स्टडी अब्रॉड. हम में से आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं लोन पे टू फुलफिल देयर अब्रॉड ड्रीम. एंड वन सच प्लेटफॉर्म दैट आई फील कैन रियली हेल्प स्टूडेंट्स टू फुलफिल देयर अब्रॉड ड्रीम इज GyanDhan. सो बेसिकली व्हाट GyanDhan डज इज इट कनेक्ट्स यू टू द बैंक. आज की अगर मैं एक रियलिटी की बात करूं और हाउ डज थिंग वर्क इन इंडिया, अगर मैं उसकी बात करती हूँ, अगर आप बैंक में लोन लेने जाओगे यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. क्या होगा, आपको कुछ बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. आप जाओगे, मैं एप्लीकेशन सबमिट करोगे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उसके लोन से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी डायरेक्ट बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू. और कुछ मिडिल मैन भी होंगे लाइक वो बोलेंगे कि दे आर कनेक्टेड टू द बैंक और दे आर वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द बैंक एंड वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी. एंड इवेंचुअली आपके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी दैट यू विल नॉट बी श्योर कि आप किस डायरेक्शन में जाओ. इट विल बी वेरी ओवरवेलमिंग टू यू. Here comes GyanDhan. What GyanDhan does is, आप GyanDhan की साइट पे जाओगे, you will register yourself, you will fulfill the complete form and provide your requirement that this is why I want the loan. जैसे ही आप अपनी सारी information fill up करते हो, the tool will check all these information and that tool will assign a person to you. वो आपका one to one connect करवाएंगे एक representative से जो कि आपकी सारी information लेगा and that person will connect to bank on your behalf. आपको बैंक जाने की कोई भी जरूरत नहीं है. आप जो भी information उस प्लेटफॉर्म पे fill करोगे वो बैंक को रीच आउट करेंगे एंड देन बैंक विल वेरीफाई ऑल दोस डिटेल्स एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई यू नीड द लोन एंड एवरीथिंग. एंड देन अगर आप बैंक को आपसे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए देन बैंक विल टेल दैट पर्सन एंड देन द पर्सन हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ GyanDhan विल रीच आउट टू यू टू अपलोड ऑल दैट इन्फॉर्मेशन ऑन दैट टूल. आपको बैंक जाने की भी कोई जरूरत नहीं है. Once everything is finalized, then you might have to go to the bank. But बीच में आपको बैंक के मल्टीपल चक्कर्स जो कि यूजुअल केस में होता है वो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है. सो दिस इज वेयर GyanDhan इज सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द chaos, confusion and the ton load of information that you generally get. GyanDhan उस सबको disconnect कर देता है and it provides you the clear concise information that this is what you have to provide to the bank. And the most important thing here is to take care is
इट इज कंप्लीटली फ्री। आपको वहां पर रजिस्टर करने से लेकर आपको जब वो बैंक रिप्रेजेंटेटिव से कनेक्ट करते हैं तब तक भी योर एलिजिबिलिटी, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द लोन यू आर गेटिंग, वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको कॉस्ट इज कंप्लीटली फ्री। यू डू नॉट हैव टू पे अ सिंगल पेनी टू द बैंक और टू द ज्ञानधन फॉर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन। और अगर मैं एक नॉर्मल प्रोसेस की बात करूं तो उसमें क्या होता है, यू माइट वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा बैंक सबसे कम इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करा रहा है। ज्ञानधन सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज वेल। आपको मल्टीपल बैंक्स की चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, सारे ही बैंक्स ज्ञानधन की साइट पर लिस्टेड होते हैं जो कि मेजरली लोन प्रोवाइड कराते हैं, एंड देयर यू कैन गेट अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन कि आपको कौन सा बैंक सबसे कम लोन दे रहा है। As I said, you will be assigned a proper representative. That person will take you through the entire process. ऐसा नहीं होता कि आपने जाके information fill कर दी और वो आपको एक standard एक information generate करके दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। They will explain you and be with you at every step. They will try to understand you कि आप किनकी जो प्रोफाइल है वो कितने लोन के लिए एलिजिबल है, क्या लोन क्राइटेरिया है। They will try to make you understand what is the difference between a collateral and a non-collateral लोन। दे विल ऑल्सो टेल यू कि आपको कितना लोन मिल सकता है, किस रेंज तक का लोन मिल सकता है। सो दे विल गिव यू एंटायर इंफॉर्मेशन। एंड जो जनरल अगर मैं एक बात करती हूँ, यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं इस केस में कि अगर आप बैंक में जाएंगे, कोई थर्ड पर्सन होगा रिप्रेजेंटिंग देमसेल्फ एज अ बैंक रिप्रेजेंटेटिव कि हम आपको लोन प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। इवन अगर आपकी प्रोफाइल कुछ लोन के लिए एलिजिबल नहीं भी होगी, देयर आर पीपल हु मेक फेक प्रॉमिसेस कि हम करवा देंगे, ये सारा काम हो जाएगा, और उसमें ना क्या होता है, आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है विदाउट नोइंग कि ये फीचर प्रोसेस हो भी रहा है कि नहीं। और फिर जब आप उनसे बाद में रीच आउट करते हो कि क्या रहा लोन का केस, क्या कितना आगे बढ़ा है, एंड में जाके वो बोल देते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीजें नहीं हो सकती। ज्ञानधन इसको भी सॉल्व करता है। जब आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन उस टूल पर अपलोड करते हो और वो बैंक के पास जाती है, तो बैंक विल चेक ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स एंड देन बैंक विल आल्सो टेल दैट पर्सन कि भाई आपकी ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है, वी नीड दिस इंफॉर्मेशन आल्सो टू प्रोसीड फर्दर। तो वो सारी चीजें भी एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ होती हैं। देयर इज नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की जो इन सारी चीजों का टेक केयर करेगी और फिर एंड में आपको आके कोई बोगस रिजल्ट्स देगी, ऐसा नहीं होता। इट इज ऑलवेज वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट विच इवेंचुअली हेल्प्स यू टू प्लान बेटर। क्योंकि अगर सी एज आई टोल्ड यू गाइज, लोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू टेक केयर ऑफ, और जब आपका यही चीज एक प्रॉपर चैनल्स के थ्रू जाता है तो ये आपकी जो बिगेस्ट वरी है अब्रॉड मूव करने की, ये एक टेक केयर हो जाती है। इसके अलावा फिर आप जो भी आपकी और सारी चीजें प्लानिंग होती है वो आप आराम से कर सकते हो। सो इफ यू गाइज आर प्लानिंग टू टेक लोन, please do consider GyanDhan because it can save a lot of time. ज्ञानधन इज नॉट प्रॉमिसिंग एनीथिंग कि वी विल गिव यू लोन और एनीथिंग, ऐसा नहीं होता कि आई एम मेकिंग दिस क्लियर कि इट्स नॉट अ टूल दैट विल से 100% कि हम आपको लोन दिलाएंगे ही दिलाएंगे, बट इट डेफिनेटली गिव्स यू क्लैरिटी, इट चेक्स योर एप्लीकेशन एंड टेल्स यू वेयर एग्जैक्टली you are missing or how can you make your application better so that your chances to get a loan is improved. So yes guys, please do check out this tool. So from what I have seen, whether you are a working professional or a student, financial planning is very important, especially in the first year when you move to abroad. But for students, margin of error is very small and a platform like GyanDhan can really help them to fulfill their abroad dream. So yeah guys, this was all about today's video. I hope you liked it, and if you did, please do not forget to hit like, share and subscribe. I will see you in my next one. Till then, take care. Bye bye.